because this is about a video that has sparked a massive controversy and has reignited the appeasement politics debate. The Goa BJP has shared a video which allegedly features the chairman of the Goa Congress Minority Committee. In the video, this Congress leader in Goa is seen getting frustrated. He's seen arguing with other members of his party. He is seen being pushed by other leaders, and further in this video he can be heard saying that there is no respect for minorities in the Congress party. Let's listen in. माइनॉरिटी का नाम नहीं लेना किसको नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का जाएंगे इधर भी माइनॉरिटी का नाम नहीं लेते हैं इधर भी प्रेस लोग है चलो आजा हमारे माइनॉरिटी का कोई भी नाम नहीं लिया जाएगा। अगर इनको इतनी नफरत है, अगर नहीं बोला जाएगा तो गोवा कांग्रेस में क्या चल रहा है कि माइनॉरिटी के लिए कोई इज्जत ही नहीं, कोई स्पेस ही नहीं है। बस इतना ही मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। Arunil, my colleague, is with us. Arunil, this is an explosive video that has been posted by the BJP. If a Congress leader who is in charge of the minority department in Goa, if he is heard on camera saying that अगर आपको minorities से इतनी ही नफरत है तो minority department ही shut कर दीजिए और minorities के बारे में आप तो मत ही बात करिए. This is what he is telling his own party leaders in the Congress party. And Congress party is a party where chief ministers, sitting chief ministers have actually gone on record to make statements like Congress is equal to Muslim and Muslim is equal to Congress. And right now, what does this video say? Give us more details. Who is this leader in question? Well, certainly, and this event was led by some of the senior central level Congress leaders. One was K.C. Venugopal was very much present, Sagarika. Manik Rao Thakare can also be seen present in this event, to much embarrassment for the Congress leadership. This was the chief of minority cell of the Congress party, Wasim Khan, openly expressing his anguish at the Congress leadership, central leadership, basically saying that they just don't care about minorities, they don't care about minority leaders as well. Why the minority cell was not called for this event? Repeatedly, minority cell leaders have been ignored. This was an allegation that Wasim Khan made. And in the video, you can clearly see, Sagarika, then the local level leaders had to intervene, had to do damage control, and had to escort Wasim Khan out of this event to ensure that there was no further embarrassment for the central level leaders. This again, I want you to stay with us because Mr. Wasim Khan is joining us on the phone line. Wasim Khan ji, thank you for speaking to Times Now. आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज। ये जो आपका वीडियो सामने आया है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतने गुस्से में क्यों थे? आपका ये क्यों कहना था कि आप तो माइनॉरिटी के बारे में मत ही बात करिए और अगर आपको इतनी ही नफरत है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आप शट कर दीजिए? ये आप किससे कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था हमारे इंचार्ज जो थे श्री मानिक राव ठाकरे जी, उनसे मैं एक दो बात बोलने को गया तो उन्होंने जगह बात करना पसंद ही नहीं समझा और मुझे बाहर जाने के रास्ते के लिए बोल दिया गया कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। उसके बाद में कोई पीछे था जिसने मुझे धक्के दिए, उस पर मुझे गुस्सा आने पे मैंने इस तरीके से बात की थी कि अगर माइनॉरिटी से इतनी नफरत है, धक्के देकर बाहर निकालना है तो उससे अच्छा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बंद कर दो। अगर चेयरमैन की इज्जत नहीं है तो फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ जो उस मीटिंग में हुआ, that was akin to an insult, आपकी बेइज्जती हुई और आप गोवा कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के तो आप चीफ है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है या बार बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब माइनॉरिटी सेल के लीडर्स के साथ ऐसा किया जाता है कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन गोवा कांग्रेस के लिए जब से हमारे अध्यक्ष गिरीश चोडनकर जी आए तब से मैं देख रहा हूँ कि माइनॉरिटी को अनदेखा किया जा रहा है रेगुलर। और मैं ये जो है दिल्ली में भी हमेशा ये बात पहुंचा रहा हूं कि अनदेखा किया जा रहा है माइनॉरिटी को, इसके लिए कुछ बात की जाए अध्यक्ष जी से। लेकिन अध्यक्ष जी ने कभी भी मुझे टाइम नहीं दिया है कि मैं जाके बात कर सकूं उनसे। तो दिल्ली में आपने ये बात किन तक पहुंचाई है? क्योंकि आपका जो कहना है ये तो बहुत बड़ी बात है। तरन्नुम खान जी इंचार्ज जो हमारी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, उनको मैं कई बार बोल चुका हूँ। पर आपका ये क्यों कहना है कि माइनॉरिटीज से इतनी नफरत है?
क्योंकि जो आपका सेंटिमेंट है वो तो बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो एक ऐसी पार्टी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ खड़ी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर्स को वो इज्जत देती है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप आज खुल के बोलिए। मैं राहुल जी से भी अभी कुछ टाइम पहले हमारा प्रोग्राम था, संवाद प्रोग्राम रखा गया था जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी ने रखा था राहुल जी के साथ में, उसमें मैं शामिल था। वहां पे भी मैं थोड़ा कुछ बोला था, स्पीच दी थी मैंने, मेरी बात भी हुई थी। सब कुछ बोलने के बाद भी राहुल जी के जो हमारे नेता हैं, राहुल जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और कांग्रेस के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गोवा कांग्रेस के लिए, गोवा कांग्रेस में अगर इज्जत नहीं होगी तो ऐसा माइनॉरिटी चेयरमैन है कि मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वसीम जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी तक भी आपने अपनी ये वाली बात पहुंचाई है, वहां से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? वो रिस्पांस आप सामने देख रहे हैं कि रिस्पांस क्या है। क्या सेंट्रल, अगर हमारे केसी वेणुगोपाल जी के सामने भी अगर मैं बात नहीं रख पाऊंगा, कि कल जो थे वो केसी वेणुगोपाल जी सर थे सामने, उनके सामने भी अगर मुझे नहीं बोला जाएगा, अगर लोकल लीडर नहीं सुनेंगे और सेंट्रल से आए हुए लीडर्स भी के सामने हम बात नहीं रख पाएंगे, अगर हमारा मुंह नहीं खोला जाए, खोलने से अगर नफरत हो रही है, धक्के देकर बाहर भेजा जा रहा है, तो उससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? तो आप ये जो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने आपसे बार बार कहा है, अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है और आप आज जो आप ये कह रहे हैं पूरी देश की जनता आपको सुन रही है, इस चैनल के माध्यम से आप अपने पार्टी के टॉप लीडर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका आज कहना है कि आपकी बेइज्जती हुई और आप गोवा माइनॉरिटी सेल के तो आप चीफ है। मैं टॉप लीडर्स को यही बोलना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से व्यवहार माइनॉरिटी के साथ अगर होगा तो ये देश के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि गोवा के अंदर जो जिस तरीके से माइनॉरिटी को अनदेखा किया गया है उस पर नजर डालें और उसको सुधार करने के लिए कुछ कोशिश करें। अगर दिल्ली हमारे सेंट्रल से नहीं होगा, टॉप लीडर्स अगर इस चीज को अनदेखा कर देंगे तो हम किसके पास जाएंगे, हम अपना दर्द तो किसको क्या बयां ये करेंगे? सच है? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है वसीम खान जी कि किसी लीडर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये बोला गया है। तो आपके साथ जो हुआ, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस की कथनी और कांग्रेस की करनी में बहुत फर्क है? जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं, हम माइनॉरिटीज की आवाज है, अगर उनकी खुद की पार्टी में उनके खुद के माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया जाता है, तो क्या एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है कांग्रेस की बातों में? मैं आपके माध्यम से हमारे नेता राहुल जी के लिए मैसेज करना चाहता हूं। अगर वो माइनॉरिटी को इसी तरीके से, अगर उनके निचले स्तर पे, मैं बोलना चाहूंगा, वो पार्टी अध्यक्ष रहेंगे गोवा के, लेकिन इस तरीके से अगर व्यवहार करेंगे तो माइनॉरिटी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात की आपने। आप ये भी बताइए, क्या ये सिर्फ आपके साथ हुआ है या क्या जो पूरा सेल है उनके सारे लीडर्स में ये सेम आक्रोश है? उनको लगता है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, धक्के भी मारे जा रहे हैं? ये जो आपने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं मेरी बात करता हूँ, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ इन सब चीजों को कि बाकी सेल को भी इसी तरीके से देखा जा रहा है। बाकी सेल को भी इसी नाम तरीके लेना से? नहीं चाहूंगा, लेकिन माइनॉरिटी को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और आप एग्जैक्टली क्या हुआ आप मुझे बताइए और डिटेल में बताइए। ये ऐसे कौन से, क्योंकि आप कह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल जी भी वहां पे थे, अगर पार्टी के सबसे सीनियर नेता एक जगह मौजूद है जहां पे गोवा के माइनॉरिटी कांग्रेस चीफ को अपनी एक बात रखनी है, अगर उनको ही उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अगर उनको ये कहना पड़ रहा है कि माइनॉरिटीज के साथ को अनदेखा किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, अगर वो भी अनसुना किया जाता है, तो एक लार्जर मैसेज क्या जा रहा है? आप विस्तार में बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ और कौन कौन था वहां? अभी हमारे केसी जी अगर गोवा में आए हुए हैं, तो अगर चेयरमैन से 1 to 1 अगर बात नहीं हो पा रही है तो मैं किससे बात करूंगा? अगर लोगों के बीच में जाके नहीं बात करना पड़े, किससे बात जाके करूं? 1 to 1 भी बात नहीं होगी, मीटिंग के टाइम पे भी बात नहीं कर सकेंगे। अगर मैं मुंह खोलने जा रहा हूं तो मुझ पे एक्शन लिया जाएगा। अगर आप मुंह खोलने जा रहे हैं तो आप पे एक्शन लिया गया। आप ये भी बताइए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक नफरत, ये नफरत वर्ड तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मोहब्बत की बात की जाती है कांग्रेस पार्टी में, मोहब्बत की दुकान की बात की जाती है, एक नारा है वो, पर आपने तो कहा है कि बहुत नफरत है माइनॉरिटीज के लिए। मुझे ये लगता है और मेरी जो टीम है उसको भी लगता है कि
हमारे लिए गोवा के लिए जो है, गोवा में जो है वो नफरत ही है सर। मैं राहुल जी के लिए हमेशा सलाम करता हूं, उनको वो हमेशा मोहब्बत के लिए बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, और हम लोग भी उसी राह पे चलते हैं कि मोहब्बत लेके ही चले हैं। और गोवा के अंदर हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग करके टीम बना के खड़ा किया है, और लेकिन उसके बाद भी हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। अगर आपके लिए ही मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत की दुकान की जो बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आपकी बात उन तक पहुंचाई जाएगी या आपकी बात उन तक पहुंचेगी? आपने तो सब कुछ खुल के कह दिया है नेशनल टेलीविजन पे। मैं आपके माध्यम से ही बोलना चाह रहा हूँ कि आप राहुल जी तक ये बात पहुंचाएं। Okay. Thank you, Wasim Khan ji. So you heard a Congress leader, the chief of the Goa minority cell, talking about how he felt disrespected, and also talking about how the Congress party talks about caring for minorities, but on ground, leaders from the minority community in a state like Goa feel sidelined. They feel that there is some kind of hatred for them. Huge allegations coming in. With that, time for us to slip into a short commercial break. We'll be back with more news and updates.